Very good afternoon to all the students and welcome to the channel again. Most of the students I know definitely you are going to unsubscribe my channel after this day because tomorrow you are appearing in social science exam. But I would like to suggest that please do not unsubscribe because after this I'll be regularly giving you some of the tips and important notes about PTE, about IELTS, about commerce and your accountancy, your choosing of the stream. So please do not unsubscribe and keep watching my videos. That will be very helpful for you in the coming years. So coming back to social science history, first chapter, nationalism in Europe, and I have told you that you have to learn it into the pieces, like the headings, like nation state, liberalization, then your romantic imagination, then your Balkan states and First World War, then unification of Germany, unification of Italy, and strange case of Britain. In this Napoleonic Code, in this you have to learn it into the topics. If you learn it like a chapter, you will not be able to. So just remember the topics like Napoleonic Code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What was romantic imagination? You should know. Then next chapter was nationalism in India. Nationalism in India starts from the World War, forced recruitment 1914, then 1915, Gandhiji returned from South Africa, 16, 17, 18, it is Satyagraha in Champaran, Kheda and Ahmedabad. Then the meaning of Satyagraha, the features of Satyagraha. Then your Revolt Act was there. What was the reason of imposing the Revolt Act? Then martial law, then Jallianwala Bagh, 13th of April 1919. The reaction, the action and the reaction of this Jallianwala Bagh massacre was that Indians were very angry and they broke the buildings and glasses and all that. Then another reaction that the Britishers were very brutal towards Indians. Then Khilafat movement, Ottoman Turkey, you know, the Muhammad Ali and Shaukat Ali started the Khilafat movement, and finally it was submerged into non-cooperation movement. The book written by Mahatma Gandhi, Hind Swaraj, there it is written why non-cooperation, because Gandhiji said that if the Britishers are surviving in India, they are surviving with the cooperation of Indians only. Then the three strands of non-cooperation: first in cities and towns, how the people behaved, how they non-cooperated, they did not cooperate the Britishers in their own way, but the reasons of failure. Then the countryside, the reasons of failure, and finally in the plantation area, how it rose and how it fell down. In this, Aluri Sitaram Raju reference is there, Chaura Chauri is there, and finally, women were not there. No women were there in non-cooperation movement. It became a big cause of the failure of non-cooperation plus the violence. The resources were not enough. The leadership was not enough. Only Gandhiji was there. How far he will be able to? Okay. Then you have C.R. Das and Motilal Nehru. Gandhiji was quite upset after Chaura Chauri. Then Motilal Nehru and C.R. Das, they took the charge and made the Swaraj party and demanded for complete Swaraj, जिसे पूर्ण स्वराज कहते हैं. Complete Swaraj, पूर्ण स्वराज. स्व means self, Raj means गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनाने के लिए. फिर आपका साइमन कमीशन आ जाता है 1924 में. एक और चीज़ मैंने कल परसों आपको एक मैसेज भेजा था कि 1924 में एक और इंसिडेंट हुआ था. यू कैन सी माई मैसेजेस, स्क्रॉल करना और देखना, मुझे बताना. फिर हम 28 पर साइमन कमीशन आ जाते हैं, और मैंने जो भी सैम्पल पेपर आपको भेजा था, इन दैट देयर वाज अ क्वेश्चन दैट व्हाई द इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद द साइमन कमीशन. इट मे कम इन 2 मार्क्स, इट मे कम इन MCQ, इट मे कम इन 3 मार्क्स. और लाला लाजपत राय का इसमें रेफरेंस है कि वो मारे गए थे इसमें, बट आपकी बुक में वो चीज़ नहीं है. फिर आप आ जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ, टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस के. गांधी जी रोड 11 डिमांड्स की लेटर लॉर्ड इरविन को लिखी थी. ही डिड नॉट गिव ईयर्स, एंड गांधी जी ने वॉर्न किया था कि अब जो भी होगा उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे. You can see that I have just come from the school and I'm still with my I card and sitting in front of you, that I shall tell you something. आज लॉन्ग वीडियो बन रही है, आज शॉर्ट नहीं है. पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना, सारे चैप्टर्स हम इसमें निपटाएंगे. ठीक है. फिर आपका आ जाता है गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट के क्लॉजेस क्या थे, पूना पैक्ट के क्लॉजेस क्या थे. फाइनली पूना पैक्ट के बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना के मन में ये बात आ गई थी कि हमारे लिए क्या है यहाँ पर. सो ही डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट, दैट इज़ पाकिस्तान. और MR जेकर का नाम आता है कि
वहाँ से बात बिगड़ गई और फिर हम सबको पता है कि देयर वाज पार्टीशन। लेकिन जो इसका लास्ट टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, इस चैप्टर का नेशनलिज्म इन इंडिया, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में भारत माता की तस्वीर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, MCQ क्वेश्चंस बहुत सारे निकल रहे हैं, तिरंगा है, फ्लैग है, स्वराज फ्लैग है, देन आपका आनंद मठ आ जाता है, वंदे मातरम का स्लोगन आ जाता है, और इन सब ने एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारे अंदर डाली, दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। उसमें पोएम्स हैं, बैलेड्स हैं, पोइट्रीज हैं, इवन नाटक हैं, प्लेज हैं, जिन्होंने हमें एक होना सिखाया। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यहाँ पर भारत माता की तस्वीर है एंड यू कैन कंपेयर इट विद जर्मीनिया के साथ इसका कंपैरिजन आता है। तो जर्मीनिया भी आपने 3 हिसाब से पढ़ी है, फर्स्ट नॉर्मल जर्मीनिया, सेकंड द फॉलन जर्मीनिया, एंड थर्ड द अगेन द पावरफुल जर्मीनिया। तो भारत माता की तस्वीर में भी ऐसे चेंजेस आए हैं जो आपको एक पेज पर दिया है, और फिर जो दूसरे पेज में उसको बताया द पावर, उसके पास द सिंबल ऑफ पावर, एक साइड एलिफेंट है, राइनोसोरस है, ये हो गया। फिर प्रिंट कल्चर, मैंने आपको परसों शायद प्रिंट कल्चर पर पूरा का पूरा चैप्टर करवा दिया हुआ है। मैन्यूस्क्रिप्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हैंड रिटन जो बुक्स होती थी पुराने ज़माने में, व्हेन प्रिंट कल्चर वाज नॉट देयर, हैंड रिटन बुक्स वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उसके प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको कल बताया था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। अब कंफ्यूज नहीं होना ग्लोबलाइजेशन के साथ। ग्लोबलाइजेशन इज इन योर इकोनॉमिक्स, वो मॉडर्न है, दैट इज़ मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। हमारा लिबरलाइजेशन है, WTO है, MNCs हैं हमारे, चाइना के मार्केट के बारे में बताया, फोर्ड के मार्केट के बारे में बताया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, दिस इज़ मॉडर्न। और ये जो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है, ये हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, जब सिल्क रूट सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट रूट था फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो डोंट गेट कंफ्यूज, वन इज इन हिस्ट्री, दैट इज प्री सिल्क रूट है, पोटैटो रेवोल्यूशन है, जर्म्स हैं, डिसीजेस हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, ये सारा मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और जो हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, दैट इज़ मॉडर्न। उसमें लिबरलाइजेशन है, MNCs हैं, उसमें आपका ट्रेड बैरियर है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ें हैं। उसमें एक क्वेश्चन होता है कि द पॉलिसीज और द डिसीजंस ऑफ WTO आर नॉट फेयर, जस्टिफाई। तो नहीं फेयर होते हैं, खुद ही तो रूल्स बनाते हैं और खुद ही उसको फॉलो नहीं करते। आजकल क्या चल रहा है वर्ल्ड सिनेरियो में, अगर आप थोड़े से अपडेटेड है, अगर आप थोड़ी न्यूज़ सुन रहे हैं, आपको थोड़ा पता है कि क्या चाहता है अमेरिका और क्या उसका मंशा है, बस ही जस्ट वॉन्ट्स टू बिकम डैडी, उसको सबका डैडी बनना है। तो ये थोड़ा सा आपको अपडेटिंग होएगी तो इट विल हेल्प यू इन आंसरिंग द थिंग्स। फिर हमने इकोनॉमिक्स भी कर लिया था, हमने ज्योग्राफी कर लिया था, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा रहता था, जिसमें पहला चैप्टर जो हमने किया था इन पॉलिटिकल साइंस, इट वाज योर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी थी। MCQ भी निकलेंगे, 2 मार्क्स भी निकलेगा, एथनिक कॉम्पोजिशन निकलेगा, सिविल वॉर निकलेगा, पावर्स, काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, चेक्स एंड बैलेंस वाला है, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल है, डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स है, इसमें आपको टेररिस्ट ग्रुप लिटे LTTE है, ये सब चीज़ें, एंड ऑब्वियसली द बेल्जियम मॉडल, जिसको हम एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम भी कहते हैं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग भी है, वाई इट इज़ डिज़ायरेबल भी है, सिविल वॉर भी है, प्रोडेंशियल भी है, इसमें एथनिक का डेफिनेशन भी है, मेजॉरिटेरियनिज्म का डेफिनेशन है। श्रीलंका में इट वॉज मेजॉरिटेरियनिज्म, वेयर ओनली द मेजॉरिटी कम्युनिटी हैज़ ऑल द राइट्स एंड विदाउट लुकिंग टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये श्रीलंका में हो रहा था, हमारे कंट्री में तो ये नहीं है। सेकंड चैप्टर आपका है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यूनिटरी फीचर्स इंडिया के, फेडरल फीचर्स, इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स, ये है। फिर हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। फिर व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, आपका लैंग्वेज पॉलिसी है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, और सेंटर स्टेट रिलेशन है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पर आप ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि जैसे पंजाब में BJP गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर आप पार्टी है, और सेंटर में BJP गवर्नमेंट है। तो अगर इन दोनों के बीच में क्लैश होगा तो ग्रांट्स नहीं मिलेंगी, कंट्री डेवलप नहीं होगा। तो दिस इज़ अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अभी यूपी को आप देखो, यूपी में भी BJP है, सेंटर में भी BJP है, तो कितने उनको ग्रांट्स मिलती हैं, कितनी हेल्प मिलती है एंड सपोर्ट, और कितना डेवलपमेंट हो रहा है पॉजिटिव। थर्ड चैप्टर है आपका जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। जेंडर का इफेक्ट पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स का इफेक्ट जेंडर पे, कास्ट का इफेक्ट पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स का इफेक्ट कास्ट पर। वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट पर क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भारत में कास्टिज्म
इस लेवल का है कि ऑनर किलिंग भी होती है, पॉलिटिक्स भी खेली जाती है, दंगे भी होते हैं, कम्युनलिज्म धर्म के नाम पर, ठीक है। एक तो सेक्युलरिज्म होता है, कम्युनलिज्म होता है, ये चीज़ है। और फाइनली आपने सबसे पहला जो जेंडर किया हुआ है हमारे देश में, जेंडर आज भी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ जेंडर है। आज भी ये काम लड़कियों के हैं, ये काम लड़कों के हैं, ये काम लड़कियां करती हुई अच्छी लगती है लड़कों, दिस इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। फिर कास्ट हेरारकी आपने इसमें पढ़ी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये हो गया। फिर इनका इफेक्ट सेक्युलर स्टेट क्या है। कई कम्युनिटीज़ ही ऐसी हैं जहाँ पर रिलीजन की वजह से लड़कियों को बहुत पीछे रखा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़। अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ पता ही है आपको, डेफिनेशन है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, नेसेसिटी है। फिर उसके 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लीडर होना चाहिए, फॉलोअर्स होना चाहिए और एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो स्ट्रॉन्ग लीडर किसी का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, आप चाहे आप अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल दो, नरेंद्र मोदी का एग्जांपल दो, कि अगर बदनाम है फिर भी तो नाम है, सक्सेसफुल तो है पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद आपका आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ऑफ 2 काइंड्स, एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी बुक में 6 या 7 दिए हुए हैं, उसमें आप पार्टी ऐड कर लेना। आप पार्टी इज़ अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ना हो, ठीक है। तो ये हमने अपनी क्लास में तैयार करवाया है, आप लोगों को भी बताया ही होगा टीचर ने। फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए, नेशनल के तो पता ही होने चाहिए, मैच में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, फ़ोटो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, हिस्ट्री को तो बहुत अच्छे से कर लेना फ़ोटो आइडेंटिफाई करने के लिए, ये हो गया। और फाइनली है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 5 पॉइंट्स थे उसमें, और उन 5 का आपको प्रॉपर वाइडली पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ में हाउ टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ है। डायनेस्टिक सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब ये जो परिवारवाद होता है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बादल फैमिली, गांधी फैमिली, यादव फैमिली, ठाकरे फैमिली। आपको अगर डायनेस्टिक सक्सेशन का मीनिंग पता है तो एग्जाम्पल्स भी पता है, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। आपका डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबल है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ टेक केयर, हैव गुड टाइम, do well, bless you all, and anytime you're welcome. You can send messages, you can come directly to me. Those who know me personally, they know my number also, or you can send message on YouTube. I will definitely reply. Thank you, have a wonderful time and take care.